రామ్ మాధవ్ గారికి ధన్యవాదాలు. అద్భుతమైనటువంటి విశ్లేషణ చేశారు, అద్భుతమైనటువంటి హెచ్చరికను కూడా ఇచ్చారనమాట. మనం అది గుర్తించాలి. ఆరిఫ్ మహమ్మద్ ఖాన్ గారిని ఇంతకు ముందే మీ అందరికీ పరిచయం చేశారు. కానీ వారు కూడా ఇన్ వాట్ మెజర్ వీ హోల్డ్ హిమ్, ఇన్ వాట్ హౌ హై రెస్పెక్ట్ టు డెమాన్స్ట్రేట్ దట్ వన్, I request Atreya Sharma to briefly once again introduce Sri Arif Muhammad Khan. We hold you in great esteem, sir. That's why I'm asking him to let you know what we think of you. Mr. Atreya Sharma. Warm welcome to you, sir, Sri Arif Muhammad Khan. Sri Arif Muhammad Khan is a leading and progressive intellectual in the country. He served at the center as a Minister of State for Agriculture, Energy, Industry, Company Affairs and Home from 1980 through 1987. But he resigned from the Rajiv Gandhi Council of Ministers in 1987 on a matter of principle. The fanatics among the Muslims severely opposed the Supreme Court judgment in the Shah Bano case. Rattled by this opposition, the government decided to undo the judicial verdict by introducing a bill in the parliament. Voicing his protest against this myopic and anti-secular stance of the government, Sri Arif Muhammad Khan chose to resign from the council, and he won the plaudits of many right-thinking people in the country. So this shows how progressive and nationalistic he is. And later in 1988-90, Sri Khan joined the non-Congress Union Cabinet and served as a Minister for Energy and Civil Aviation. Sri Khan is fond of books and is a voracious and keen reader. He has thoroughly studied Islamic classics, Islamic law and Islamic philosophy. And with his in-depth knowledge, he authored in 2010 a bestseller, Text and Context, Quran and Contemporary Challenges. Sri Khan is equally at home with Marxist literature as well as the Mahabharata. Sri Arif Muhammad Khan contributes his learned articles to various newspapers and magazines. To sum up, Sri Arif Muhammad Khan is a staunch opponent of communal politics and an ardent supporter of national integration and harmony. Now I request my friend Shailendra Kaur to felicitate our guest with a bouquet. आपका हुक्म है हिंदी में बोलने के लिए, तो मैं हिंदी में बोलूंगा। सम्मानित सभाध्यक्ष श्री हनुमान चौधरी जी, श्री राम माधव जी, श्री अंजनैया रेड्डी जी, श्री नागराज राव जी, एडिटर आंध्रा भूमि श्री MVR शास्त्री जी, और इस सभा में उपस्थित सभी देवी और सज्जनों, सबसे पहले तो मैं श्री हरि जी को और उनके साथियों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने यहां आमंत्रित किया और राष्ट्रीय महत्व के इस विषय पर बोलने के लिए मौका दिया, और उनके साथ साथ राम माधव जी को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उनके ही माध्यम से ये निमंत्रण मुझे मिला और आप सबसे बात करने का मौका मिला। अभी मैं बहुत समझ नहीं रहा था,
लेकिन राम माधव जी ने विस्तार में, और मुझे बताया गया है कि उससे पहले हमारे अंजनैया साहब ने वैधानिक दृष्टि से और संवैधानिक दृष्टि से इस प्रस्तावित कानून के बारे में बात की। मैं उसके प्रावधानों के बारे में बात नहीं करना चाहता, बल्कि मैं वही बात दोहराऊंगा जो मैंने उस वक्त कही थी जब शाहबानो के केस में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के प्रभाव को खत्म करने के लिए उस वक्त की सरकार ने संसद में कानून पेश किया था। तब मैंने एक बार नहीं, ये बात बार बार कही थी, अगर कोई खराब संसद या विधानसभा द्वारा पारित कर दिया जाए, बिल पारित कर दिया जाए और वो कानून भी बन जाए, तो एक मुद्दत गुजरने के बाद अपने तजर्बों की रोशनी में उसकी खराबी को भविष्य में दुरुस्त किया जा सकता है। प्रावधान कोई पत्थर पे खींची हुई लकीर नहीं है कि उसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन किसी कानून को बनाते वक्त उसके कारणों और उसके बारे में जो बात की जाती है उसके नतीजे में जो मानस पैदा होता है, जो फोर्सेस अनलीश होती हैं, जो दिमाग बनता है, उसको अनडू नहीं किया जा सकता, उसको समाप्त नहीं किया जा सकता। और उसको समाप्त करने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ता है। मेजॉरिटी माइनॉरिटी, मैं कहता हूं मुझे संविधान का कोई एक प्रावधान बता दीजिए जिसमें यह बताया गया हो कि भारत में रहने वाले ये लोग मेजॉरिटी कम्युनिटी हैं और ये लोग माइनॉरिटी कम्युनिटी। एक प्रावधान बताइए कोई। माइनॉरिटी शब्द का उल्लेख है, लेकिन किस तरह वो उल्लेख है? कर्नाटका के 5 गांवों में संस्कृत बोलने वाले लोग वैधानिक और संवैधानिक दृष्टि से अल्पसंख्यक हैं। हिंदी बोलने वाले, मैं गलत जगह कह रहा हूं, शायद हैदराबाद नहीं कहना चाहिए, लेकिन हिंदी बोलने वाले अगर तमिलनाडु और केरला में हैं तो वो अल्पसंख्यक हैं। औरों को तो छोड़ दीजिए, मैं इस तरह देखता हूं कि संविधान के उन 2 क्लॉजेज में जहां अल्पसंख्यक शब्द या माइनॉरिटी शब्द का उल्लेख किया गया है, ये एक तरह का, आप बाकी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स जिन्हें मूल अधिकार कहते हैं उसको अगर आप पढ़िए तो वो अधिकार तो दूसरे जो प्रावधान है उसमें भी सुनिश्चित हैं, लेकिन शायद एक मानस बन गया था हमारे यहां, एक जहन बन गया था, और मैं शुरू की बजाय उस जहन की जो पराकाष्ठा है, उसकी जो इंतहा है, जिसके नतीजे में इस देश का बंटवारा हुआ 1947 में,
मैं वहां पे लाता हूं कि जब इसको पीछे की तरफ नजर डालिए, ये जहन कहां से बना था? जहां 1800 कुछ यानी 19वीं शताब्दी के शुरू में, उस वक्त वाइसरॉय नहीं होता था, कंपनी का गवर्नर जनरल होता था। वो खत लिखता है ब्रिटिश सरकार को, भारत राष्ट्र नहीं, इंडिया इज नॉट ए नेशन, इंडिया इज ए कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ वेरियस कम्युनिटीज एंड कास्ट। भारत एक राष्ट्र नहीं है, भारत समूह है धार्मिक समुदायों का और जातियों का। और ये कूट कूट के हमारे दिमाग में बिठाया गया। हम अलग हैं। हमारी केवल धार्मिक मान्यताएं अलग नहीं हैं, हमारे सारे दृष्टिकोण अलग हैं। हम 1000 साल से इस देश में दीवार से दीवार मिली हुई है, साथ रह रहे हैं, लेकिन एकदम से हमें बताया गया कि चूंकि हमारी धार्मिक आस्थाएं अलग हैं इसलिए हम साथ नहीं रह सकते। उन्नीस 1906 में एक डेपुटेशन शिमला गया लॉर्ड मिंटो के पास। और उसके कोई 20 साल के बाद मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने अपने एक लेख में लिखा और उन्होंने कहा कि मैं अगर अंग्रेजी का वो फ्रेज इस्तेमाल करूं, वो वाक्य इस्तेमाल करूं जो युद्ध के बीच में अंग्रेजी के पत्रकार इस्तेमाल करते थे, नाउ देयर इज नो एप्रीहेंशन ऑफ एनी हार्म इन डिस्क्लोजिंग। अब इस बात को, इस रहस्य को स्पष्ट करने से किसी नुकसान की आशंका नहीं है। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि वो प्रतिनिधि मंडल गया नहीं था, उसको बुलाया गया था। और उस प्रतिनिधि मंडल जो गया था या बुलाया गया था, उसने 6 महीने या 4 महीने के बाद ढाके में मुस्लिम लीग बनी। और उसके बाद की जो राजनीति है, और खास तौर से 1936 से लेकर 47 तक, मैं कल मैं बनारस में था एक कार्यक्रम में, तो जो मित्र मुझे लेने के लिए आए स्टेशन पे, वो मुझसे पूछने लगे रास्ते में कि शांति कैसे स्थापित हो। मैंने कहा असल में कुछ घटनाएं इतनी जघन्य होती हैं, कुछ इंसिडेंट्स होते, इतनी उसकी इनॉर्मिटी होती है कि वो हमारे सिर्फ मन मस्तिष्क को नहीं झिझोड़ देती, हमारे पूरे मानस पे असर डाल देती। इस देश के बंटवारे ने हमारे मानस पे असर डाला है, हमें झकझोर दिया। नतीजा यह है कि नया संविधान बनने के बाद, जिसमें न मेजॉरिटी के कहने के लिए कोई गुंजाइश है और न माइनॉरिटी कहने के लिए, परमानेंट मेजॉरिटी और परमानेंट माइनॉरिटी जैसी कोई चीज नहीं। माइनॉरिटी स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापित रामाकृष्णा मिशन, उनके जो शिक्षण संस्थाएं, उन्होंने भी माइनॉरिटी राइट एक स्टेज पर क्लेम किया, इसलिए कि उसमें डिफाइंड नहीं है। अगर आंध्र प्रदेश के रहने वाले लोग दिल्ली में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, तो वो संविधान के वो 2 प्रावधान, इसलिए कि उनका ताल्लुक मुख्यतः शिक्षा के संस्थाएं स्थापित करने से है। वो आंध्र प्रदेश के कुछ लोग अगर मानिए उत्तर प्रदेश के किसी शहर में रह रहे हैं, दिल्ली में तो आंध्र सोसाइटी है, वो उनका पूरा अधिकार है
कि वो संविधान के आर्टिकल 29 और 30 के तहत अगर अपना कोई ऐसी संस्था स्थापित करना चाहते हैं जो शिक्षा की संस्था हो, उनको पूरा हक हासिल है कि वो उसमें अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। तो संविधान हमारा किसी कम्युनिटी को परमानेंटली ना माइनॉरिटी बताता है ना मेजॉरिटी बताता है, लेकिन देश के विभाजन ने हमें ऐसा झंझोड़ा है कि हम जब बात करते हैं मेजॉरिटी कहिए तो आदमी समझेगा हिंदू, और माइनॉरिटी कहिए तो आदमी समझेगा मुस्लिम, क्रिश्चियन या और भी कम्युनिटीज। हमारी संविधान सभा ने 2 काम किए। हमारे फंडामेंटल राइट्स ज्यादातर क्या है, राज्य इस बात को सुनिश्चित करेगा कि सबके समान कानून लागू हो और समान प्रोटेक्शन, संरक्षण प्राप्त हो कानूनों का। आर्टिकल 15 कहेगा राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि किसी के खिलाफ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। लेकिन 2 हमारे ऐसे फैसले हैं संविधान सभा के जो बहुत पॉजिटिव फैसले थे, और उसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। पॉजिटिव फैसले क्या थे? पहला फैसला था, जिस चीज ने इस देश को, हमारे राष्ट्रीय समाज को कमजोर करके रखा और दूसरों को ये कहने का मौका दिया कि ये एक देश नहीं है बल्कि ये विभिन्न समुदायों का समूह है, वो जो जातिगत आधार पर ऊंच नीच थी, मैं जाति नहीं कह रहा, जातिगत आधार पर जो ऊंच नीच थी, आर्टिकल 17 के जरिए एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का उसको खत्म करके हटा के उस व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश की, ताकि हमारी अंदर जो जिस चीज ने हमें एक जमाने से अंदर से कमजोर करके रखा, ये कोई साधारण, ये फिर वही बात है कि जो उस व्यवस्था होती है उससे मानस बनता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, कोई निरफो हमें कहानी, दासी का बन जई है रानी। यानी एक बड़ी तादाद थी इस देश में जो ये समझते थे राज कोई भी करे, हमारी सेहत पे क्या असर पड़ रहा है, हमें तो जो काम करना है, हमें अगर कपड़े धोने हैं तो कपड़े धोने हैं, हमें जूता बनाना है तो जूता बनाना है, राज कोई भी करे। नतीजा क्या है, मैं उसकी विस्तार में नहीं जाऊंगा, इतिहास पे हम नजर डालें तो उसका हमें नतीजा सामने नजर आता है। दूसरी चीज कि अंग्रेज ने इस चीज का फायदा उठाते हुए और ये दिमागों में बात भरी कि तुम अलग हो और तुम अलग हो, और तुम्हें वो जैसे यूरोप में एक जमाने में सोशलिज्म बहुत पॉपुलर था, बहुत लोकप्रिय था समाजवाद, तो वहां किसी ने लिखा कि सोशलिज्म का मतलब है सोशलिस्ट लीडर्स को समाजवादी राजनेताओं के बारे में उनके बारे में बताते हुए लिखा कि दे आर द वंस हु कलेक्ट मनी फ्रॉम द रिच, दे कलेक्ट देयर वोट्स फ्रॉम द पुअर, promising to each section that they will protect one from the other। तो बिल्कुल ठीक इसी तरह उसने कहा तुम्हारी धार्मिक आस्थाएं अलग हैं, तुम्हारे एक दूसरे के से तुम्हारे हित टकराते हैं। एक को कहा हम तुम्हारे अधिकारों की रक्षा करेंगे, दूसरे को कहा तुम्हारे अधिकारों की रक्षा करेंगे, कुछ को इधर लगा दिया, कुछ को इधर लगा दिया, और इतना ज्यादा कर दिया, जैसे मैंने पहले कहा कि 1906 से लेके वो राजनीति शुरू हुई, 1935 आते आते जोर पकड़ गई और 1947 में इस देश का बंटवारा हो गया। और वो चीज हमारे मानस पे आज तक, सब कितनी देर बोल रहा मुझे नहीं, फिर भी नहीं साहब, ज्यादा कहूं, कब से बैठे हैं लोग जी। सॉरी, आप लोग खाना भी तो खाना होगा घर का।
मैं माफी चाहता हूं, मेरी बस में नहीं था, फ्लाइट लेट हो गई। तो उसने, और वो ऐसा जघन्य घटना नहीं, अपराध हुआ है। ये देश में तो ऐसी, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रेजिलियंस है। बंटवारा कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती। तो भले ही सामने से उसके जो प्रभाव हैं वो खत्म हो गए हों, लेकिन उसने हमें झंझोर दिया, हमारे मन मस्तिष्क पर उसका असर आया है। और नतीजा यह है कि 1800 कुछ से लेकर 1947 तक का जो अंग्रेज का अभियान था और कोशिश थी, उसके नतीजे में आज हम नहीं, पहले मैं वो बात कह दूं कि दूसरी चीज जो की हमारी संविधान सभा ने, हमारी संविधान सभा निश्चित तौर पर इस राय की थी कि अंग्रेज की उन कोशिशों के बावजूद अगर अंग्रेज ने सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक चुनावी व्यवस्था, जहां एक धार्मिक आस्था के लोग अपने नुमाइंदे चुनेंगे, अपने प्रतिनिधि, और दूसरे जनरल अलग चुने जाएंगे। अगर असल चीज जिसने इस आंदोलन को बंटवारे के कामयाब बनाया, वो